السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کا لفظ معنی یقین کرنا ان غیبی چیزوں پر جن کا تعلق نگاہوں سے نہیں بلکہ دل سے ہے، اور دل میں جو بات یقینی طور پر آتی ہے اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور اس ایمان کی قوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بلند و بالا کر دیتا ہے کہ وہ پھر اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلتا، اور یہ جب ہوتا ہے جب کہ حکم خداوندی پر عمل کرتے ہیں۔ اگر اپنی مرضی پر ہم اپنی زندگی گزاریں اپنی مرضی کے مطابق، تو پھر یہ ایمان کی کامل حقیقت ہمیں میسر نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ اسی وقت میسر ہوگی جب کہ ہم حکم خداوندی پر دل و جان سے عمل کریں اور اس کو ہم اپنا رہنما مانے، رہبر مانے کہ ہمیں جو بات بتائی گئی تھی وہ بالکل صحیح ہے۔ جس طرح سے ایک شخص نے موٹر سائیکل لی یا کوئی ایکٹیوا لی تو بنانے والے نے اس کے طور طریقے متعین کر دیے کہ ہمیں نے گاڑی تیار کی ہے اور ہمارے ہی پاس اس کی چابی ہے، اور ہمارے ہی بتائے ہوئے طریقے پر تم اگر اس پر عمل کرو گے، کام کرو گے تو یہ زندگی بھر تمہارا ساتھ ملتی رہے گی۔ اگر تم اس کو اپنی مرضی سے چلائیں گے تو تمہیں بالکل نقصان پہنچا دے گی، یہاں تک کہ تمہیں خاص نہیں ملا گی۔ جس طرح سے ایک شخص دکاندار ہے اور وہ دکانداری کرتے کرتے اپنے ہر چھوٹے بڑے گراہک کے اوپر نظر رکھتا ہے، چاہے کوئی اس سے 1 روپے کا سامان لے رہا ہے یا 1000 روپے کا سامان لے رہا ہے اور وہ اس کو اپنا سمجھ رہا ہے، تو وہ اپنی دکانداری میں بڑھوتری پا رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو نامی بنیا کہلانے والا ہو جاتا ہے۔ بنیا کا معنی بنا ہوا ہونا، کیونکہ وہ اتنا چاق چوبند ہے، وہ اپنے گراہکوں کو قدم کو دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے کہ یہ میرا گراہک کس درجے کا ہوتا ہے، اور میں اس کو اپنی باتوں سے ایسے اس کی دل پر اثر ڈال کے اپنی طرف مائل کر سکتا ہوں۔ لہذا یہ میری تقدیر ہے کہ وہ 100 روپے کا سامان خریدے یا 1000 روپے کا۔ آج یہ مجھ سے 10 روپے کا سامان خرید رہا ہے، اگر یہ میرے ایمانداری دیکھے گا، میرے اخلاق کو دیکھے گا، تو یہ کل کو جو ہے 500 روپے کا سامان خریدے گا۔ اس طرح سے یہ دکاندار دھیرے 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 جو ہے بڑھتا چلے جائے گا، سامان اچھا دیتا چلے جائے گا، عزت ملتی چلی جائے گی۔ اسی طرح سے حکم خداوندی پر عمل کرتے رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معزز بنتے چلے جاؤ گے۔ اس لیے کہ آدمی کو کوئی سے بھی آدمی ہے، کسی بھی درجے کا آدمی ہے، اس کی تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں نہیں رکھی بلکہ اپنے ہاتھ میں رکھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے معبود حقیقی کی عبادت کرتے تھے، کھلے بھی اور چھپ کر بھی، لیکن یہ پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کب نوازے گا، اور جس درجے کے لیے آپ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجے گئے ہیں وہ درجہ آپ کو کب میسر ہوگا، کب ملے گا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی علم نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام جب اس غار حرا میں اللہ کی بندگی کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ آپ علیہ السلام اللہ کی بندگی کر رہے تھے اور انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا پڑھو۔ آپ کہنے لگے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے پھر کہا پڑھو،
आपने फिर वही जवाब दिया, क्योंकि जिसने हमेशा सच्चाई को अपने दिल से लगाया है तो वो हमेशा सच बोलेगा कि मैं तो पढ़ता ही नहीं, मुझे तो पढ़ना आता ही नहीं। उसने फिर जोर से कहा और अपने सीने से लगाया और पढ़ो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो कुव्वत अता फरमा दी, आपको अपने सीने से लगाकर वो ताकत अता फरमा दी, आप पढ़ते गए। और इंसान की उस हकीकत को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया, पहले कलम को और अपने नाम को और फिर आदमी की कमजोरी को और उसके कुव्वत को बयान किया कि इंसान को हमने क्या से क्या किया और इसका दर्जा फिर कहां से कहां भी मिला दिया। अगर बंदगी करता चला गया तो ये बढ़ता चला गया, नाफरमानी करता गया तो जमीन में धंसता चला गया। तो ईमान का ताल्लुक जो है वो उन गैबी चीजों से है जो इंसान देख नहीं सकते। इंसान के पास जिंदगी गुजर जाएगी मोबाइल चलाते चलाते, लेकिन उसके नेट कब का रहे हैं, उसमें जो है नेट किस तरह से आ रहे हैं वो उसे नहीं दिख रहे, और ये जो है हवाओं में घूम रहे हैं। और ये तरंगे जो है हमारे मोबाइलों में आ रही और हवा का सहारा लेकर ये आवाज हम तक पहुंच रही। तो अजीजान गिरामी, इसी तरह से बिजली के तार हैं, बेशक लगे हुए हैं, लेकिन इनमें करंट किस तरह से आ रहा है ये हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन इनमें कितनी ताकत है, इतनी ताकत है कि कितने भी चीज को, ताकतवर चीज को जो है ये पल भर में जो है फेंक भी देते हैं और उसकी जान भी ले लेते हैं। तो जो चीज जितनी ताकतवर हो सकती है वो इतनी ज्यादा जो है नुकसान पर जो है तबाह भी हो सकती है, बर्बाद भी हो सकती है। तो ईमान को बचाना, ईमान पर कायम रहना, ईमान पर जमे रहना, साबित कदम रहना, यह इंसान को दुबारा करता है और इज्जतदार बना देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पाक से उम्मीद रखो, अपना ताल्लुक अल्लाह से पैदा करो, शिर्क और बिदअत से परहेज करो। शिर्क और बिदअत, क्योंकि बहुत सारी चीजों में शिरकत कर सकते हैं, एक दूसरे को दुकानदारी में साझा कर सकते हैं, लेकिन कोई यूं कहे कि मेरी माँ के साथ वो बच्चा भी पैदा हुआ, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरी बीवी दूसरे की बीवी है, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, और किसी चीज में साथ रहने में बर्दाश्त कर लेगा, किराए में कमरा ले लो, हम भी किराया देंगे, आधा तुम भी किराया देंगे, 1000 रुपए इस कमरे का किराया, 500 रुपए तुम देना, 500। इन चीजों में शिरकत चलती चल जाएगी, लेकिन बहुत सारी चीजों में शिरकत नहीं चलेगी। बिदअत से परहेज करो। बिदअत, इस्लाम के अंदर जो चीज ना हो उसको अपना शेवा बना लो, उसका अपना मकसद बना लो, उसको अपना हामी मददगार बना लो, उस पर यकीन कर लो, तो ये ईमान को दूर करते चले जाएगा और इतना दूर करता चल जाएगा कि आदमी फिर जबान जोरी में रहेगा और हक बात कहने से गाफिल हो जाएगा। जो जबान जोरी करेगा बेवजह की, फिर वो मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचता और वो फिर दूर ही होता चल जाता है। शिर्क और बिदअत से परहेज करो, कुफ्र से परहेज करो, कभी भी किसी कुफ्र की बात में हाँ में हाँ ना करो, परहेज करो, हाँ में हाँ ना करो, शिर्क की बात में हाँ में हाँ ना मिलाओ, कुफ्र और शिर्क की बातों से बेजार रहो। कभी किसी मौके पर भी दुनिया के सामने दीन की किसी छोटी से छोटी बात को भी किसी पसे पुष्ट मत डालो, और दुनिया की बड़ी से बड़ी बात के सामने अपने मजहब इस्लाम की छोटी से छोटी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। और इस्लाम की तो कोई बात छोटी है ही नहीं, उसकी तो सारी की सारी बातें बड़ी ही बड़ी है, सारी दुनिया पर भारी है। ऐसा करने से तुम तरक्की करते चले जाओगे। तरक्की करते चले जाओगे तो इसका मतलब ये है कि हम माल दौलत में बढ़ते चले जाओगे, बल्कि ईमान में तरक्की करते चले जाओगे। जिसे ईमान कामिल नसीब हो गया उसकी तमाम जिंदगी आसान हो गई, और जिसका ईमान डगमगा गया फिर वो देखने में तो लगेगा कि बहुत कुछ है बहुत कुछ है, लेकिन अल्लाह की नजर में गिर जाएगा। जो अल्लाह की नजर में गिर जाता है फिर वो जो है लोगों की नजर में भी गिर जाता है, फिर उसको लोग अच्छा तसव्वुर नहीं करते, अच्छा नहीं मानते।
कब तक जो है उल्टी सीधी हरकतें करेगा, एक न एक दिन मौत आके उचक लेगी और फिर लोग उसको उसी लहजे उसी जो है नजर से मानेंगे जो उसने किया। इसलिए कि ईमान की बातें ईमानदारी से मजबूत, ईमानदारी के काम करने से मजबूत होती है, और इधर उधर की बातें, शैतानियत की बातें, उल्टी सीधी बातें करने से मजबूत होती है। नहीं तो किसी मौके पर अपने दीन की बात को दुनिया के सामने हल्का समझ बैठता है तो ऊपर से बहुत नीचे ऊपर से बहुत नीचे गिर आता है, नीचे आ गिरता है। इसकी नहुसत से साल हर साल की मेहनतें बेकार हो जाती है, उसके ईमान की शाखें टूट जाती है, आला दर्जे से अदना दर्जे में पहुंच जाता है। इसलिए कभी भी किसी मौके पर भी दीन के सामने दुनिया को तरजीह न दो। हर वक्त और हर जगह अपने मजहब को, अपने दीन इस्लाम को तरजीह देने की कोशिश करो और अपने मजहब पर साबित कदम रहो, और ये समझो कि हमारे मजहब से अच्छा दुनिया में कोई मजहब नहीं है। और है भी यही बात कि दीन इस्लाम से बढ़कर, दीन इस्लाम से अच्छा कोई मजहब नहीं है। दीन इस्लाम से बढ़कर, दीन इस्लाम से अच्छा कोई मजहब नहीं है। तो दीन का लफ्ज तो दीन है, लेकिन ये कई मायने में इस्तेमाल होता है। जैसे मालिक यौमिद्दीन, कुरान करीम की पहली ही सूरत में ये आयत है, मालिक यौमिद्दीन। तो यहाँ पर मजहब मुराद नहीं, बल्कि क़यामत के दिन मुराद है, क्योंकि वो ऐसा हौलनाक होगा और दर्द भरा होगा। लेकिन ये दर्द भरा हर किसी के लिए नहीं होगा। जो अल्लाह के बंदे हो गए वो उस वक्त भी जो है खुश व खुर्रम होते हुए फिरेंगे, चलेंगे, और लोग जो है हिसाब किताब में मुब्तला होंगे। बदले का दिन, क्योंकि नाफरमानियाँ ज़्यादा की हैं लोगों ने, नाफरमान ज़्यादा है लोग, इसलिए जो है उसके दर्दनाक भी जो है अंजाम जो है सामने आ गए। और अगर अच्छे लोग हैं तो उनकी भी वजाहत कर दी, तो उनके लिए ऐसा भी मामला है। मालिक यौमिद्दीन, तो यहाँ पर क़यामत के दिन का मालिक है, बदले का दिन का मालिक है, यौम जज़ा का मालिक है, और वही तो है, सभी कुछ तो उसका है, उसके अलावा तो कोई है नहीं। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएंगे, कहाँ हैं वो लोग जो अपनी बादशाही पर इतराते थे, कहाँ हैं वो लोग जो पैर जमीन पर रखना पसंद नहीं करते थे, कहाँ हैं वो लोग जो अपनी शान शौकत पर इतराते थे, कहाँ हैं वो लोग जो अपने माल दौलत पर इतराते थे। कोई जवाब नहीं आएगा। अल्लाह कहेगा मैं ही अल्लाह हूँ, और मैं ही वाहिद हूँ, मैं ही काहिर हूँ। उसके सामने किसी की नहीं चलती। तो अजीज़ान गिरामी, दीन मुहम्मदी अगर हमने कह दिया तो इसका मतलब या शरियात मोहम्मदी कह दिया, या हमने कह दिया मिल्लत इब्राहिमी, तो इसका एक ही मतलब और एक ही माना आता है। मिल्लत इब्राहिमी, दीन मुहम्मदी, शरियात मोहम्मदिया। शरियात कहते हैं कानून खुदाबंदी को, और खुदा के कानून जो है वो हमेशा हमेश के लिए होते हैं।